Hello everyone, this is Dr. Shefali Anand, currently a second year resident in the Department of General Medicine at AIIMS Patna. So finally I get to say that second year resident, emphasizing on the fact that the first year of my residency is finally over. Definitely it was not at all under the blink of an eye. Almost every bit of it I could feel that okay, this is passing by. It was not, I just mean to say that it was not that easy. From having sleepless nights to running after those emergency calls, or I say some fake emergency calls. There were real emergencies as well. So all of these things have been tremendously satisfying in a way, but also very tiring at the same time. So I'm not gonna lie, it was not always a very thrilling experience or a lot of excitement. Yes, we used to be excited. I got excited at so many things, but at the same time I was feeling tired also. I felt exhausted, I felt frustrated, irritated with the workload, with the people, with a lot of things. We'll talk in the time being. So this video intends to tell you what you should come prepared for, or what all you would have to face if you are planning to join branch like general medicine. So let us talk about the shifts, the struggles, the hardships, the breakthroughs, and everything that comes in between. So starting with, first thing is your expectation versus the reality. हम लोग जो कुछ लोग होते हैं ना, लाइक मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं, जो डॉक्टर हाउस देख करके आता है कि हम लोग तो जाएंगे और हम लोग जाते के साथ में डायग्नोसिस बनाएंगे. बट जब तुम यहाँ पे आओगे एंड जब तुम टेक्नीशियन के साथ में ही तुम्हें लगेगा ना, फर्स्ट ईयर गोज इन डीलिंग विद द टेक्नीशियन, कॉल करके इसको इधर बैलेंस करो, ये काम इधर से निकालो, उधर से निकालो, रेडियोलॉजी में जा करके जेआर से जल्दी सीटीज की टाइमिंग लो, रिपोर्ट्स को जा करके ट्रेस करो, जज हुए कि नहीं हुए, जल्दी कराना है, ये सब में तुम्हारा मैक्सिमम टाइम जाने वाला. सो इंस्टेड ऑफ वर्किंग ओवर द डायग्नोसिस, you would be busy with all of these things. So हम लोग जो एक mindset लेकर के आते हैं, वो same चीज़ यहाँ पे होती नहीं है. But I'll tell you what, the satisfaction, the real satisfaction lies in these tiny bits. Because you know, when you work at the ground level and जब तुमको दिखता है कि तुम्हारे एक छोटे से effort से किसी का एक रुकता हुआ काम हो पा रहा है या जल्दी हो पा रहा है, you know, you actually facilitate in the better patient care, you will feel good. Here comes the next point, which is a lot of paperwork. So one thing that I learned, especially at AIIMS, which is very crucial, I would say, is documentation of the events and documentation of whatever you are doing for the patient or you have already done for the patient, so that the doctor on duty who comes after you gets a fair enough idea by just flipping the pages of the file of the patient. So for example, if you notice a seizure episode happening in front of you, you should document it well. At what time did it happen? How was you describe the seizure movement? What was it associated with? For example, was there drooling of saliva? Was there frothing? Was there uprolling of the eyes? Was there incontinence or not? For how long did it last? What treatment did you give? What happened to the patient? Were there any exacerbating factors? What all, like vitals of that time, or the ABG, if you could, you do about the ABG. So all of these things should be mentioned in the file, so that the person who comes next to you gets a fair enough idea that अभी तक क्या किया हुआ है और आगे क्या करना है. And also it's very important कि हर चीज़ अच्छे से documented हो. डॉक्यूमेंट करना भी important है और उसको सही से डॉक्यूमेंट करना important है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस नाम से लिख दिया, उसका कुछ मतलब ही नहीं बन रहा है. So ऐसा भी नहीं होना चाहिए. If the patient gets a fever spike, at what time did the patient get? तुमने कुछ ट्रीटमेंट दिया कि नहीं दिया, स्पंजिंग करी कि नहीं करी, और उस टाइम पे कल्चर्स भेजा कि नहीं भेजा, कुछ और एसोसिएटेड मतलब फीवर का कुछ सोर्स मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था. सो एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड. डॉक्यूमेंटेशन का बहुत 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 बड़ा रोल है, इसमें भी है. और लेटर ऑन समडे वील डिस्कस कि मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स भी होते हैं इसके, लाइक ड्यूरिंग जब हम लोग और भी चीज़ें करते हैं ना, जब डॉक्यूमेंट करते हैं, समरीज देते हैं, डिस्चार्ज समरीज एंड ऑल देते हैं, तो उस टाइम पे भी डॉक्यूमेंटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है. ओके, सो द थर्ड पॉइंट इज अबाउट द स्केड्यूल.
सो अ लिटिल आयरॉनिकल टू टॉक अबाउट द स्केड्यूल, क्योंकि स्केड्यूल की तो वाट लगी होती है. स्केड्यूल जैसा तो कुछ बचता ही नहीं. स्केड्यूल बोलने के लिए ही है, स्केड्यूल में स्केड्यूल ही नहीं होता है. सो फॉर यू द वर्क विल बिगिन मोस्टली एट 7 और इन आवर इंस्टीट्यूट इट बिगिन्स एट 7:45 to 8 AM in the morning and you have to stay until the entire work is done. ठीक है, अब वो रात के 1 बजे भी हो सकता है, रात के 2 बजे भी होता है. एंड यू आर नॉट द माइंड यू आर नॉट अ नाइट ड्यूटी डॉक्टर फॉर दैट डे. वो तो अलग ही है, ये तुम्हारा खुद का काम है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम जाता है. एंड द थिंग इज कि तो यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द जॉब बिकॉज नेक्स्ट डे यू वुड बी हेल्ड आंसरेबल. तुम्हारा खाना सोना, खाना पीना, सोना, नहाना, हर चीज ही कॉम्प्रोमाइज होती है स्टार्टिंग में. तो लाइक इन द इनिशियल 6 months as far as I remember, I could barely sleep for 5 hours a day. And मेरे को याद है for कितनी ही बार ऐसा हुआ है, like 2 बज गया और रात के, and I would think कि अभी रूम जाके क्या ही करेंगे. So I would sleep in the ward itself. Next morning I'll wake up और फिर वही जो आगे का काम है, ब्रश करके खाना. तो मतलब कभी खाओ वैसे, कभी नहीं खाओ. इट वॉजंट अ बिग डील. स्टार्टिंग में बिग डील था, बट लेटर ऑन तो इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था. सो इन द बिगिनिंग we somehow kind of romanticize these long working hours. It is said by one of my professors here that ऐसा कुछ होता है कि हमें खुद में we start taking pride, okay, like कि कौन ज़्यादा लंबे टाइम तक काम करेगा या फिर कौन ज़्यादा काम कर रहा है. वही हम लोग को लगता है कि हमारा काम तो यही, इसी को अच्छे से करना. तो कभी कभी ऐसी वाली फीलिंग भी JRs में, जो कि स्टार्टिंग में नए नए आते हैं, उनमें आ जाती है. तो इतना नहीं सोचना होता है. हाँ, ऑब्वियसली काम को फिनिश करना है, बट एज फास्ट एज पॉसिबल बिकॉज योर बॉडी ऑल्सो नीड्स टू रेस्ट. यू आर नॉट अ हॉर्स दैट you will just go on and go and go on. Otherwise at the end you will have a bad fatigue. So fatigue तो ऐसे भी होगा क्योंकि काम तो कर ही रहे हो तुम, बट हाँ, इसको मिनिमाइज करना है instead of just maximizing it. So my next point is about the discharges. So patients आते हैं, एडमिट होते हैं, उसके बाद में हम लोग हिस्ट्रीज लेते हैं, हम लोग ट्रीट करते हैं, फिर वो ठीक हो जाते हैं अगर ठीक हुए, या फिर फॉलोअप के लिए बुलाना होता है तो हम लोग उसको डिस्चार्ज करते हैं. जब हम लोग डिस्चार्ज करते हैं तो डिस्चार्ज के टाइम पे हमें डिस्चार्ज समरी प्रिंट करके होनी थी, जिसमें कि इनिशियली वी मेंशन दैट व्हाट वर द कंप्लेंट्स दैट द पेशेंट केम विद, व्हाट वर द already existing complaints or what treatment he was receiving. Then we write in the hospital course that what we did to the patient, the investigation, the treatment given, and then finally the advice on discharge followed by an appointment date जिसपे कि हम लोग पेशेंट को नेक्स्ट रिव्यू के लिए बुलाते हैं. तो अपॉइंटमेंट डेट हम लोग टाइम के साथ देते हैं, जस्ट पेशेंट के कन्वीनियंस के लिए, ऐसा कि उनको आकर के वेट नहीं करना पड़े अलग से. सो ये पूरा जो पेपर वर्क है जिसको प्रिंट करके देना होता है, ये भी बहुत टाइम लेता है, क्योंकि हर पेशेंट के लिए अगर आप ऐसे करोगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो डिस्चार्जेस आर अ बिग चंक. दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन योर फर्स्ट ईयर कि तुम डिस्चार्ज ही दे रहे हो. और ये होगा ना कि कभी इस वार्ड का प्रिंटर काम नहीं कर रहा है, भाग के दूसरे वार्ड में जा रहे हैं, यहाँ पे पेपर नहीं काम कर रहा है. तो ये जो छोटी छोटी यहाँ पे जो लूप्स एंड होल्स आते हैं, तो उसके लिए भी तुमको ही फिलअप करना पड़ेगा दीज गैप्स. सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्चार्जेस. नेक्स्ट कम्स द नाइट शिफ्ट. सो ये जो नाइट शिफ्ट की बात हम लोग अभी कर रहे हैं ना, दिस इज अदर देन जो तुम्हारा हर दिन का रात का 1-2 बजेगा. सो इन दीज एक्चुअल नाइट शिफ्ट्स लाइक जो कि 8 PM से लेकर के नेक्स्ट मॉर्निंग की 8 AM तक होती है, बट उसके बाद भी हम लोग को कभी कभी रुकना पड़ता है, क्योंकि हमारा काम खत्म है. ऑब्वियसली तुमको राउंड्स करा के जाना होगा, जो थोड़े बहुत काम होते हैं उनको देख करके ही जाना होता है. द बिगेस्ट डिफरेंस इन बीइंग एन इंटर्न देन इंटर्न से जो ट्रांजिशन होता है JR में, वो यही होता है कि यू आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पेशेंट्स. लाइक इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो यू कैन नॉट रन अवे, यू कैन नॉट गिव एन एक्सक्यूज कि मेरा तो ये हो गया था. कुछ भी हो, काम होना चाहिए. ईदर यू कन्वे टू समबडी एल्स जो कि तुम्हारे साथ पेशेंट को देख रहा है, और यू योरसेल्फ डू इट. ठीक है, तो ये चीज़ एक होती है. और नाइट शिफ्ट में होता क्या कि जो कि 8 PM से लेकर के नेक्स्ट मॉर्निंग 8 AM तक की होती है, उसमें हमारे जो फोन नंबर्स होते हैं, पर्सनल कॉलिंग नंबर्स, वो हर मेडिसिन के जितने भी वार्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव 4 वार्ड्स 30 बेडेड ईच.
तो वहाँ पे सर्कुलेट करते हैं एंड अदर अलग से प्राइवेट वार्ड्स भी होते हैं। अभी वो लोग क्या करेंगे कि तुमको कंटिन्यूसली कॉल करेंगे, हाँ इस पेशेंट को ये हुआ, ये आकर के देख लो, उसको वो देख लो। और व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे वो लोग कंटिन्यूसली लाइक वो लोग मीन्स द नर्सिंग स्टाफ ऑब्वियसली पेशेंट का बीपी अगर किसी का कम ज़्यादा आ रहा है सीधा मॉनिटर की फोटो खींच करके डाल देंगे, एबीजी किसी का डाल देंगे। तो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट, यू हैव टू बी वेरी अलर्ट एट ऑल टाइम्स इन द नाइट। यू कैन नॉट जस्ट गो टू स्लीप। नाइट ड्यूटी मतलब एक्चुअल नाइट ड्यूटी होती है, वो देखते रहना होता है। और ऑल्सो यू विल हैव न्यू पेशेंट्स कमिंग इन नाइट एज वेल एंड यू विल हैव टू रिसक्सिटेट अगर कोई पेशेंट खराब होता है तो ये सब कुछ ही नाइट ड्यूटी में आता है। तो नाइट ड्यूटीज के लिए वील टॉक सम अदर डे इन डिटेल दैट एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। सो दिस इज इन शॉर्ट कि नाइट ड्यूटीज में क्या होता है। ऑल इन ऑल आई वांट टू से इट इज हेक्टिक, ओके। एंड माय लास्ट पॉइंट इज that I want to discuss today is what I learned in my first year. Like I have learned a lot of things. अगर academics की तो बात अभी नहीं करेंगे. What I personally learned, observed in people and learned for myself, even if you feel that you are losing it, don't lose. Even if you are made to believe that you are not good enough, do not believe. Because 90% of the times what you see other people are good at, they are not, they are just faking it, and this is the reality. And you my friend, if you are one of the people like me जिसको कि कुछ नहीं आता तो वो मुंह पे बोलते कि oh I don't know this, and they're not scared of the judgments. It's not about getting scared, they just don't think okay कि इस step के लिए वो लोग judged हो जाएंगे. Just speak it, okay if I don't know this but I'm ready to learn. उनके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी होता है. It is a very good attribute, I would say. Do not lose it. And even if कोई तुमको इसके लिए judge करे, you don't know, you should not be judging yourself for these things ever in your life. A weakness, being scared of those judgments that come along with is a weakness, and that is what holds you back from learning, you know, makes your learning का very ऐसा वाला. और इसी के साथ में we have come to the end of this video. I hope I could deliver something important which will help you in the first year of your residency. Thank you so much for this video. We'll meet soon. Bye bye.